Good morning, students. In my previous video I have started the 5th chapter 100 dishes part 1 and half chapter I had explained. Today's video we will continue the rest of pending chapter. Previous video I have covered up to page number 67, hides or have a funny name. So in today's video I will start sometimes when Peggy was asking. Page number I have mentioned so that you have the clarity. You have to continue the chapter from your book, which page number. Okay, so already I have told you that who was Wanda, who was Peggy, and who was her best friend, Maddie. I hope you have gone through till now. So let's start the half chapter. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. So from here the story continued that ਜਦੋਂ भी Peggy Wanda ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ बहुत ही पोलाइट तरीके दे नाल, मॉकिंग मीनस मजाक बनाना, ਉਹਦਾ जोक क्रिएट करना, तो बहुत ही पोलाइट आवाज़ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ मजाक ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਮੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇੰਬੈਰਿਸ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਪਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਰਬਲਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਗੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਦਾ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਪੈਗੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਅਦਰਸ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਔਨ ਹਰ ਨੈਕਸਟ. She was not as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਂਡਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਗੇਮ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਂਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਡਰੈਸਿਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਫॉर them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petrosky. ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੁਡੇ ਈਵਨ ਦੋ they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly. आज ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਡਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 8 times 8 ਲੈਟਸ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਦਾ ਨਰਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਪੈਗੀ ਅ ਨੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 times 8 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਨਿਊ she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ
ਪੈਗੀ ਵਾਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰ ਦੇ। So when she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. अब फिर वो की करदी है, अपने मैथ के प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करन तो बाद पैगी दे लिए एक नोट लिखना शुरू कर देंदी है। अचानक वो रुक जाती है और पॉज ले लेंदी है। शटर्ड ਦਾ मतलब इत्थे हुंदा हैगा फीयर, मतलब डर करके बॉडी शेक करना, कंबना शुरू कर देना। और ਉਹਨੂੰ डर ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ लगता हैगा, ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पिक्चर अपने आप ਨੂੰ पिक्चराइज करना शुरू कर देंदी है कि वो स्कूल के यार्ड ते खड़ी है और पैगी दी नवी टारगेट है। यानी कि पैगी जिहड़ी है मैडी तो बाद वांडा तो बाद मैडी का मजाक बनाना शुरू कर रही है सारे गर्ल्स के नाल मिल करके। और पैगी का की पता, वो मेरे तो यही पूछते कि जिहड़ा तू ड्रेस पाया होया है ये कित्थों लेके आई है। And Maddie would have to say it was one of the Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with। और फिर कह रही है, अपने मन ही मन सोचती है मैडी कि फिर तो मैनू सारे दे सामने कहना पऊगा कि ये पैगी दे ही पुराने कपड़े हैं जिहड़ी मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है डिसगाइज विथ न्यू ट्रिमिंग, सो नो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकगनाइज इट। न्यू ट्रिमिंग करके नए तरीके दे नाल फिटिंग दे करके और उसकी स्टिचिंग करके उन्होंने लुकाउण की कोशिश की, हाइड करन दी, छुपाउण दी, डिसगाइज करन दी कि रूम नंबर 13 के बच्चे नूं पता ना लगे कि ये ड्रेस उत्तों मंगी हुई है या फिर पैगी ने उन्होंने हैंड ओवर की है, पैगी दी ही पुरानी ड्रेस हैगी है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. कहंदे की पता पैगी एक दिन खुद ही डिसाइड करे कि उन्होंने वांडा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। फिर मैडी की करती हैगी, अपने शॉर्ट ब्लंड कटे हुए बालों 'च हाथ फेरती हुई अपने आप को इस अनकंफर्टेबल थॉट तो बाहर कढ़न की कोशिश करती हैगी है। What difference did it make? Slowly Maddie torn into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और उस तो बाद जिहड़ा नोट वो लिख रही सी कहती है कि डिफरेंस रह जाऊगा, हौली हौली उस नोट नूं फाड़ के सुट देंदी है। तो पैगी की कहती है कि मैडी की सोचती है कि पैगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पैगी पूरे क्लास दे विच सब तो ज़्यादा पसंद होने वाली यानी कि लाइक की जाने वाली कुड़ी है। फिर भी वो कहती है कि इस तरह का पैगी कुछ भी गलत काम नहीं करूँगी कि लोग उसके बारे में कुछ गलत सोचें। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. फिर वांडा के बारे में सोचती हुई करती है, कहती है कि वांडा जिहड़ी है वो बॉगिन हाइट्स से आने वाली एक कुड़ी हैगी आ जो पूरे स्कूल के यार्ड दे विच कल्ली खड़े होंदी है और खड़ के बाकी बच्चे नूं खेडदा होया देखदी है। और कहती है कि हार्डली स्कारसली मतलब हार्डली वो कुछ कदे गल करती है, सिर्फ इस गल नूं छड्ड के कि जदों तो पूछा जाता हैगा कि तेरे कोल कितनी ड्रेसिस हैगी आ, दैन वो हमेशा ही 100 ड्रेस का जवाब देती है। सो मैडी रिमेंबर हर टेलिंग about one of her dresses, pale blue with the color trimming, and she remembered another that was brilliant jungle green with the red sash. You had looked like a Christmas tree in that. The girls had said in the pretended admiration. अब मैडी नूं याद आंदा हैगा कि जदों अपने ड्रेस के बारे में कह रही सी वांडा तो एक लाइट ब्लू कलर ड्रेस के बारे में दसदी है कि उन्होंने ट्रिमिंग की गई है और दूजा ड्रेस का कलर जिहड़ा हैगा वो ब्रिलियंट जंगल कलर ग्रीन कलर यानी कि डार्क ग्रीन और रेड शैश के बारे में दसदी है। दैन बाकी बच्चे उसका मजाक बनाते हुए प्रिटेंडेड एडमायरेशन यानी कि झूठी तारीफ करते हुए, प्रिटेंड करना नॉट रियल फेक तारीफ करते हुए कहते फिर तो तू क्रिसमस ट्री वांगू लगती होगी उस फ्रॉक नूं पा के। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest for girls. This
contest consisting of designing dresses and for boys of designing motorboats. वांडा के बारे में और वो 100 ड्रेसिस के बारे में जोड़े वो क्लोजेट यानी कि कबड़ से लाइन अप करके लगे होंगे, मैडी अचानक ही स्कूल के होने वाली एक कॉम्पटीशन के बारे में सोचना शुरू कर देंदी है। आ कॉम्पटीशन गर्ल्स के लिए ड्राइंग और कलरिंग का होंदा हैगा और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स डिज़ाइन करने के लिए लेके होंदा हैगा। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. फिर की कहते कि पूरे स्कूल क्लास के बच्चे तो यही सोचते हैं कि पैगी की ड्राइंग सब तो वधिया हैगी है और इन्ना वधिया वो ड्रॉ करती है, दैन हो सकता है कि उन्होंने लगता है कि ये कॉम्पटीशन पैगी ही जीतूगी। कहते उसकी ड्राइंग इन्नी वधिया हैगी है कि वो किसी मैगजीन या फिल्म स्टार नू एज इट इज़ कॉपी कर लेंदी है जिमें कोई ओरिजिनल लगता हो। दैन फिर वो की कहती है दैट ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स दैन दे हैड नो। फिर कहते कि श्योरली पैगी ही जीतूगी, फिर कल नू टीचर ने तो अनाउंस कर ही देना, देन आपां नू पता लग जाऊगा। Next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill lead to Boggin Heights. अब कहते नेक्स्ट डे मड़ी मड़ी मीह पै रही होंगी है कि ड्रीजलिंग मतलब बहुत ही लाइट रेन होना। मैडी और पैगी के अंबरेला के अंदर स्कूल जाते हैं और नैचुरली यानी कि बहुत क्लीयर होंदा है कि वांडा ने तो आना ही नहीं, तो इस करके ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वो वेट भी नहीं करते। आ जी ओलिवर स्ट्रीट सीगी वो एक रेल रोड ट्रैक सीगी और सीधे बॉगिन हाइट के पहाड़ी वाले एरिया तक जाता सीगा रास्ता। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट। आज वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते सीगे क्योंकि जे आज लेट हो जाते दैन इंपॉर्टेंट अनाउंस होना सीगा स्कूल दे विच, दैन फिर उन्होंने इन्हों पता नहीं लगना सीगा। सो डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। दैन पैगी की पूछती है कि तेनू पता ना आज तो मिस मैसन ने अनाउंसमेंट करना है विनर का नाम। दैन फिर वो फ्रेंड मैडी की कहती हाँ मैनू पता है, जीतना तो ऑफकोर्स तू ही है। होप सो सैड पैगी ईगरली। पैगी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ हो सकता है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प। There were drawings all over the room on every ledge and windows, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on the great sheets of wrapping paper. जिवें ही क्लास के अंदर वो एंटर करते हैं वो थोड़ा जहा रुक जाते हैं और गैस्प यानी कि सरप्राइज़ होकर के मुँह खुला रह जाना, हैरान हो जाते हैं कि पूरे क्लासरूम के अंदर ड्राइंग ही ड्राइंग होंदी है। हर एक कॉर्नर ते लेज यानी कॉर्नर, विंडो ते ड्रेजलिंग यानी कि डैजिंग कलर, ब्रिलियंट डिज़ाइन, बहुत ही सोहनी लैविश डिज़ाइन दे ड्राइंग रैपिंग पेपर वाले शीट्स ते बनाए गए होंदे है। There must have been 100 of them all lined up. This must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistles or murmured admiringly. और कहते सारी ड्राइंग ऑलमोस्ट 100 होंदी है, सारे लाइन अप होंदे हैगे। ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए किसी बच्चे ने बनाया होगा। सारे इस ड्राइंग को देख करके हैरान हो जाते हैं और विसलिंग करना शुरू कर देंगे हैं और हौली हौली मरमरिंग यानी कि बहुत हौली आवाज़ के विच तारीफ भी करते हैं उस ड्राइंग की। दैन as soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagels had won the boys, he said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. क्लास असैम्बल होने तो बाद मिस मैसन जोड़े है बॉयज़ के नेम विनर्स के नेम अनाउंस करते हैं। जैक बैगल्स जोड़ा है उस बच्चे ने बॉयज़ की कॉम्पटीशन जितया होंदा है और कहती है कि रूम नंबर 12 दे विच ओदी ड्राइंग एग्जीबिशन के लिए लगी हुई है और वो बाकी बॉयज़ के स्केचेस भी यानी ड्राइंग भी लगाए गए हैं। एज फॉर द गर्ल्स ही सैड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs.
कहते जो गर्ल्स की गल करिए दैन सारे ने एक या 2 स्केचेज ही सबमिट किए हैं, पर रूम नंबर 13 सिर्फ एक गर्ल्स के उत्ते बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा क्योंकि उस गर्ल ने ऑलमोस्ट 100 ड्रेस की डिज़ाइन सबमिट की है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे सोहने सोहने जे तो डिफरेंट है गया। इन द ओपीनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। कहते जे आप जजेस का ओपीनियन कंसीडर करिए तो इस बच्ची की एक ही ड्राइंग इस कॉम्पटिशन जितने के लिए काफ़ी है। फिर की कहते हैं टीचर, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मैडल। कि गर्ल्स की प्राइज़ किहड़ी बच्ची ने जीती है, वांडा पेट्रोंस्की ने गर्ल्स मैडल नू जीतिया है। दैन फिर की कहते हैं क्लास के टीचर, अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर some days and is not here to receive the applause that is due to her। कहते कि अनफॉर्चुनेटली वांडा कुछ दिनों तो स्कूल नहीं आ रही है, इस करके वो जी आप तारीफ कर रहे हैं वो नहीं देख पाऊगी, रिसीव नहीं कर पाऊगी। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सरसाइज ड्राइंग्स। फिर उस तो बाद वो की कहते हैं कि पूरी क्लास चुप करके एक लाइन बना ले और शांत होकर के तुसी उहदे थ्रू बनाए गए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सोहने सोहने ड्राइंग्स नू देख सकते हो। द चिल्ड्रन बस्ट इन टू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। सारे चिल्ड्रन जोड़े है वो बर्स्ट करके यानी कि बहुत खुश होकर के क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे है और बॉयज़ जोड़े है वो फ्लोर पर अपनी शूज़ की अपने फिट की आवाज़ करते हुए उन खुश होकर के उहदी प्रेजिंग करते है, कुछ विसलिंग करना भी शुरू कर देंगे है। सारे उहदे ड्रेसिस देखना शुरू कर देंगे है, इवन बॉयज़ बहुत ज़्यादा उहदे ड्रेस से इंटरस्टेड नहीं होंगे है। लुक पैग विस्पर मैडी, दिस दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। फिर ਉਹਦੀ फ्रेंड पैगी की फ्रेंड ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ कि पैगी मैडी कहती है ਉਹਨੂੰ कि तुसी देखो वो ब्लू कलर का ड्रेस ਉਹਦੇ बारे में दसिया सीगा सानू वांडा ने ये कितना सोहना हैगा। यस सैड पैगी एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। कहते उस तो बाद पैगी कि इत्थे ग्रीन कलर वाला ड्रेस भी हैगा, बॉयज़ नू दस दिए कि इत्थे ग्रीन कलर वाला ड्रेस भी होगा और मैनू लगता सीगा कि सिर्फ मैं ही वधिया ड्राइंग कर सकती हाँ। सो दिस इज़ द ending of the 5th chapter 100 dresses part 1. So 6th chapter the same story we will continue, and along with that I will post video so that you all will have the clarity. Thanks.